کرتے ہیں آج کی کلاس کو اور دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہے اس میں. ہم نے سر تحقیق سے کل دو کلاس ہم نے تحقیق سے لی ہیں. آج اسی کی تیسری کڑی ہے. چلیے آپ کے سامنے کلاس حاضر ہے, پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. وعلیکم السلام. مولوی عبدالحق جن کا بڑا نام ہے تحقیق میں قادری بڑا نام ہے. ان کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے سامنے اسکرین آ گئی ہوگی, مائک بند کر لیجیے. کہہ رہے ہیں کہ شمالی ہند میں اردو تحقیق. کل ہم لوگ پڑھ رہے تھے جنوبی ہند میں اردو تحقیق. ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں شمالی ہند میں اردو تحقیق. دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی. کہہ رہے ہیں مولوی عبدالحق کا 1870-1961. اردو میں مولوی عبدالحق کا مرتبہ بہت بلند ہے. اردو میں مولوی عبدالحق کا مرتبہ بہت بلند ہے. انہوں نے نہ صرف انفرادی طور پر تحقیق کے میدان میں کارنامہ ہائے نمایاں انجام دیے, بلکہ انجمن ترقی اردو کی بنیاد ڈال کر اجتماعی تحقیق کو بھی فروغ دیا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ انجمن ترقی اردو کی بنیاد کس نے ڈالی, تو مولوی عبدالحق نے. انہوں نے اپنی بے لاگ اور مخلصانہ کوششوں سے اردو کی ترقی کے لیے نئی راہیں ہموار کیں. ٹھیک ہے. اور نئی نسل کے علمی شغف اور تحقیقی ذوق کی تربیت کی. ان کی تحقیقی سرگرمیاں کسی ایک شعبے تک محدود نہیں ہیں. انہوں نے تحقیق کو اپنا موضوع بنایا, قدیم تذکروں اور دواوین کو دریافت کر کے مرتب کیا, دکنیات سے متعلق اہم حقائق تک پہنچ کر قدیم ادب کی گمشدہ کڑیاں تلاش کیں. ان کی تصنیف و تالیف میں درج ذیل کی اہمیت مسلم ہے. اب سوال یہ آ جائے گا کہ اور شمالی ہند کا وہ کون سا محقق ہے جس نے دکنی ادبیات پر جو ہے کہ کافی محنت کر کے اس کو منظر عام پر لایا, تو مولوی عبدالحق ہیں. کون کون سی کتابیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں. اب اردو زبان میں علمی اصطلاحات 1961, یہ یاد رکھیے گا. اردو صرف و نحو, یہ کتاب پوچھی گئی ہے. اردو کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ, یہ بھی پوچھا گیا ہے. اردو انگریزی لغت, یہاں تھوڑا مشتبہ ہو جاتا ہے, شبہ ہوتا ہے گلکرسٹ کی طرف, لیکن یاد رکھیے گا یہ کتاب مولوی عبدالحق کی ہے. اردو انگریزی لغت, باغ و بہار کے بھی مرتب ہیں یہ. رشید حسن خان نے تو کیا ہی تھا, ہے نا. انتخاب کلام میر بھی. آگے آجیے, تذکروں میں کن کن تذکروں کی ترتیب دی انہوں نے. مولوی عبدالحق نے بحیثیت مرتب, یہاں مرتب ہوگا کیونکہ وہ خود فاعل ہیں, 8 تذکروں پر کام کیا, جن کے نام ہیں نکات الشعراء 1751, تذکرہ ریختہ گویاں 1752, چمنستان شعراء 1761. اس کی تصنیف کی تاریخ ہے. گل عجائب 1779, عقد ثریہ 1784, تذکرہ ہندی 1785 1794, ریاض الفصحاء 1806 اور یہ 1820 تا لکھا ہے, 1806 تا 1820, مخزن شعراء 1851. تو ایک سوال میں پوچھا بھی گیا ہے کہ ترتیب کیا ہے, تو ترتیب یہاں یاد کر لیجئے. ان سب کے مرتب کون ہیں؟ مولوی عبدالحق ہیں. نکات الشعراء 1751, تذکرہ ریختہ گویاں 1752, چمنستان شعراء 1761, گل عجائب 1779, اسی طرح آ جائیے عقد ثریہ 1784, تذکرہ ہندی 1785 85 سے 94, 85 تا 94, ریاض الفصحاء 1706 تا 1806 1820, مخزن شعراء 1851. اس کو یاد رکھیے گا ترتیب. تذکروں کی تدوین کے علاوہ دکنی زبان و ادب کی تحقیق, سب ان سارے کے مرتب کون ہے؟ مولوی عبدالحق. یاد رکھیے گا, تذکرہ ہندی کے مرتب مولوی عبدالحق, عقد ثریہ کے مرتب مولوی عبدالحق, چمنستان شعراء کے مرتب مولوی عبدالحق. یہ سب کے مرتب مولوی عبدالحق ہیں.
کر رہے ہیں इसके अलावा तदवीन और तज़किरों के अलावा दक्कनी ज़ुबान व अदब की तहक़ीक़ मौलवी अब्दुल हक का ख़ास मैदान रहा है। उन्होंने जिन दक्कनी मुतून को मुरतब किया उनमें सबरस, कुतुब मुश्तरी, गुलशन इश्क, चमनिस्तान शुअरा, गुल अजायब का नाम सर फहरिस्त है, उसको याद रखिएगा। कुतुब मुश्तरी को भी और सबरस दोनों के मुरतब कौन है? मौलवी अब्दुल हक हैं। गुल अजायब का भी नाम इसी में शामिल है। शुमाली हिंद के क्लासिकी शुअरा में मीर तकी मीर मौलवी अब्दुल हक की तहक़ीक़ के ख़ास का मौजू रहे हैं। यानी मौलवी अब्दुल हक पर तवज्जो के साथ काम किया है, मेहनत की है इखलास के साथ। उन्होंने 1921 में मीर के कलाम का इंतखाब अपने मुक़द्दमे के साथ शाये किया था। हो जाएगा कभी कभी सवाल अगर ये आ सकता है कि किसने अपने तवील मुक़द्दमे के साथ या बसीरत अफरोज़ मुक़द्दमे के साथ मीर के कलाम को शाये किया था? मौलवी अब्दुल हक ने 1921 में। मीर की सवाने उम्र ज़िक्र मीर, ये सवाल भी आया हुआ है कि ज़िक्र मीर का मुरत्तिब कौन है? मौलवी अब्दुल हक हैं, याद रखिएगा, ये सवाल आया हुआ है। ज़िक्र मीर फ़ारसी में है, ठीक है, ये खुद नविश्त है, किसकी? मीर की। मीर की सवाने उम्री है, खुद नविश्त है। सवाने उम्री इस हैसियत से और बहैसियत कातिब जो उन्होंने खुद लिखा है तो खुद नविश्त है। और मीर के तज़किरे निकात-उश-शुअरा को तहक़ीक़ व तस्हीह के बाद मंज़र आम पर लाएँ। तो ये बताइए तज़किरा निकात-उश-शुअरा में सबसे पहले किस अदीब का नाम है? तज़किरा निकात-उश-शुअरा में सबसे पहले किस अदीब का नाम बताइए, कमेंट कीजिए। तज़किरा निकात-उश-शुअरा में सबसे पहले किनका जिक्र आया है? सबसे पहले किसका जिक्र आया? अदीब हो या शायर, दोनों बात एक ही होती है। जो अदीब होता है वह शायर भी हो सकता है और जो शायर होता है वह अदीब तो होता ही होता है। अमीर खुसरू, अमीर खुसरू का जिक्र सबसे पहले। चलिए आगे आ जाइए, सवाल आया हुआ है। और सबसे आखिर में किसका जिक्र है इसका भी खोज लीजिएगा, देख लीजिएगा सब लोग। सबसे पहले अमीर खुसरू का जिक्र है तो सबसे आखिर में किसका जिक्र है इसको देख लीजिएगा। चलिए मीर असर के दीवान और उनकी मसनवी ख्वाब ख्याल बार बार पूछते हैं ना इम्तिहान में, तो मीर असर की मसनवी है ये, तो इसके भी मुरत्तिब यही हैं, अदबी दुनिया से तारुफ़ कराने वाले मौलवी अब्दुल हक। उन्होंने अप्रैल 1926 में रिसाला औरंगाबाद में ख्वाब ख्याल और जुलाई 1926 में उनके नमूने कलाम गज़लियात से मुतालिक मालूमात पेश की थी। याद रखिएगा मौलवी अब्दुल हक ने कितना बड़ा काम किया था बिहार को होकर। मौलवी अब्दुल हक को उर्दू ज़ुबान व क़वायद से ख़ास दिलचस्पी थी। उर्दू हुरूफ़ तहज्जी, अफ़आल, इफ़आल नहीं है, अफ़आल, फ़ेल के जमा अफ़आल, और उर्दू सर्फ़ नहव का मुताला उन्होंने अपनी किताब क़वायद उर्दू, याद रखिएगा, उर्दू सर्फ़ नहव भी किताब इनकी है और क़वायद उर्दू भी है। क़वायद उर्दू में जिस तरह किया उससे उर्दू में इल्म लिसानियात के लिए इम्कानात की नई राहें खुलती हैं, ये नई राहें खुली। मुताले ज़ुबान के सिलसिले में उनकी मुस्तकिल किताब क़वायद उर्दू, उर्दू सर्फ़ नहव और फ़ारसी का असर मरहटी ज़ुबान पर, ये तीनों किताब याद रखिएगा। फ़ारसी का असर मराठी ज़ुबान पर, क़वायद उर्दू, उर्दू सर्फ़ नहव, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा लिसानी और क़वायदी मबाहिस पर मुश्तमिल उनके मुक़द्दमात मुतालाए ज़ुबान के एतबार से बहुत कारआमद है, खुसूसन मुक़द्दमा दरियाए लताफ़त, याद रखिए, मुक़द्दमा फ़रहंग इस्तिलाहात इल्मिया और मुक़द्दमा मतबूआत दारुत तर्जमा उस्मानिया चश्म कुशा मुक़द्दमात हैं। तो याद रहेंगी चीज़ें। बात समझ में आ रही है? किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इतनी बात समझ में आ गई? बोलिए जल्दी से, यस नो, कुछ समझ में आया? इतनी बातें समझ में आई या नहीं आई? क्या बोल रहा है? क्लास ज्वाइन हो रही है? रुबाना ज्वाइन है कि नहीं? ज्वाइन नहीं हुआ? अच्छा, हो तो गए हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग बर्थडे मना रहे हैं? चलिए, कोई बात नहीं।
आइए देखते हैं। तो ये बात समझ मौलवी अब्दुल हक के बारे में। महमूद शिरानी हमारे यहाँ बराह रास्त नहीं है, लेकिन हम पढ़ लेते हैं, पढ़ ही रहे हैं तो किताब पढ़ने का इतना फ़ायदा तो होना चाहिए। महमूद खां शिरानी 1880-1946, तरतीब ही याद कर लीजिएगा, सवाल तरतीब से ही बन जाएगा। महमूद शिरानी को उर्दू तहक़ीक़ का मेमार अव्वल कहा जाता है। ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है ना, मेमार अव्वल, याद रखिएगा, महमूद शिरानी को कहा जाता है। वह उर्दू और फ़ारसी ज़ुबान व अदब के मुमताज़ आलिम और मुहक़्क़िक़ थे। हो सकता है ये सवाल पूछ ले कि वह किससे तल्लुक़, अंग्रेज़ी उर्दू, उर्दू अरबी, अरबी मराठी, अरबी पंजाबी, कुछ तो उर्दू और फ़ारसी। शिरानी ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तहक़ीक़ की। तारीख़ी लिसानियात, लुग़त व क़वायद, उरूज़ व बलागत, शेर व अदब और तज़किरे उनके पसंदीदा मौज़ूआत थे। शिरानी की संजीदगी और सख्ती का एक ज़माना कायल है। उनकी तहरीरों ने उर्दू तहक़ीक़ का न सिर्फ ये कि एक सख्त और आला मेयार कायम किया, बल्कि बाद की तहक़ीक़ को दिक्कत नज़र और मोतबरियत का कायल भी बना दिया। उनकी अहम किताबें और उनके मक़ालात के मजमूए दर्ज ज़ैल हैं। तनक़ीद शेरुल अजम, फिरदौसी पर 4 मक़ाले, मक़ालात हाफ़िज़ महमूद शिरानी, खालिक बारी की तदवीन किया इन्होंने। इसके अलावा कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा, मजमुआ नुग़ज़ की तरतीब दिए हैं इन्होंने, और सबसे मकबूल व मारूफ़ तहक़ीक़ी किताब पंजाब में उर्दू। तो ये याद रख लीजिए आप, खालिक बारी, हो सकता है कभी भी सवाल बन जाए यहाँ से। खालिक बारी, खालिक बारी पर तहक़ीक़ी व तदवीनी काम किसने किया है? महमूद खां शिरानी ने। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? नहीं आ रही तो बोलिए, नहीं आ रहे तो खामोश रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। जो मैं बता रहा हूँ तो इम्तिहान के लिए काफ़ी है। ये देख लीजिए, मसूद हसन रिजवी अदीब देख लीजिए, यहाँ सवाल कभी कोई पूछते हैं। चलिए, 1893-1975, सब लोग कमेंट कीजिए। 1893-1975 कमेंट कीजिए सब लोग। 1893-1975 उर्दू के नुमाया आलिमों में शुमार किए जाने वाले अदीब व मुहक़्क़िक़ हैं मसूद हसन रिजवी अदीब। उन्होंने तहक़ीक़, तारीख़, लिसानियात, क़वायद और बदियो बयान के अलावा मरसिया और ड्रामे की तहक़ीक़ व तनक़ीद पर ख़ासा काम किया है। उनका अहम कारनामा उर्दू के रसाई अदब की तहक़ीक़ व तनक़ीद है। रसाई मतलब मरासी। और अवध की तारीख़ और लखनवी तहज़ीब उनके पसंदीदा मौज़ूआत हैं। उर्दू ड्रामे की तहक़ीक़ से ड्रामे के मुताल्लिक़ उन्होंने बहुत सी मालूमात फ़राहम की। उर्दू रस्म ख़त की तहक़ीक़ भी उनकी अहम तरीन तहक़ीक़ी कामों में से एक है। अब देखिए, जो अहम चीज़ें याद रख लीजिए, चूँकि हमको जिस तरह से इम्तिहान पूछा जाता है वो हमको याद रखना है। आब हयात का तनक़ीदी मुताला याद रखिएगा, मसूद हसन रिजवी अदीब। रूह अनीस एक किताब पूछी गई है। फैज़ मीर, मुतफ़र्रिक़ात गालिब, शरह तबा तबाई और तनक़ीद गालिब कलाम याद रखिएगा। लखनऊ का अवामी स्टेज भी पूछी गई है। लखनऊ का शाही स्टेज भी पूछी गई है। इंद्रसभा तदवीन तरतीब व तदवीन, मरासी रेख्ता, शाहकार अनीस, रज़्मनामा अनीस, शायर आज़म अनीस, असलाफ़ मीर अनीस। एक ये पूछा गया था कि मीर अनीस पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले कौन है? सबसे ज़्यादा काम करने वाले कौन है मीर अनीस पर? मसूद हसन रिजवी अदीब। चलिए, आप में से कोई एक आदमी फिर से दोहराइए इन किताबों को। आप में से कोई एक आदमी जल्दी से दोहराइए इन किताबों को। आब हयात का तनकीदी मुताला 1913, रूह अनीस 1926, फैज़ मीर 1929, मुतफ़र्रिक़ात गालिब 1945, शरह तबातबाई और तनकीद कलाम गालिब 1973, लखनऊ का अवामी स्टेज 1956, लखनऊ का शाही स्टेज 1957, इंद्रसभा तरतीब व तदवीन 1968, मिरासी रेख्ता 1984, शाहकार अनीस 1943, रज़्मनामा अनीस 1957 और शायर आज़म अनीस 1966, असलाफ़ मीर अनीस 1970। ये सब किताबें किसकी हैं? मसूद हुसैन रिजवी अदीब। मसूद हुसैन रिजवी अदीब की किताबें। चलिए, इतने काफ़ी है। यहाँ एक किताब और दिया, इसको भी याद रखिएगा। मसूद हसन रिजवी अदीब ने दीवान फ़ायज़ दहलवी की तदवीन
हुसैन या हसन, मसूद हसन लिखा है ना, हसन देख लीजिए, जो लिखा वही सही है, मसूद हसन रिजवी अदीब। दीवान फ़ायज़ की तदवीन 1945 में मुकम्मल करके 1946 में शाये किया। दीवान फ़ायज़ के मुरत्तिब भी यही हैं, याद रखिएगा। चलिए एक दो किताबें और उसमें देख लीजिए। उर्दू ज़ुबान और उसका रस्मुल ख़त, इस पर मैंने सबसे पहले प्रोग्राम कराया था, उर्दू में प्रोग्राम कराता था। उर्दू ज़ुबान और उसका रस्म ख़त ये है, ठीक है, इनकी किताब। अब आ जाइए काजी अब्दुल वदूद, इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। काजी अब्दुल वदूद 1896 1984। सब लोग कमेंट कीजिए एक मतलब तारीख को। गर्मी इस कदर है, बदन में ताकत ही नहीं मिलती है, ऐसा लग रहा है। काजी अब्दुल वदूद उर्दू के खरे और सख्त मुहक्किक हैं। उनकी नज़र खूबियों से ज़्यादा खामियों पर ठहरती है। ज़ुबान शनासी 1995 काजी साहब के तहरीर करदा तहक़ीक़ी मज़ामीन का मजमूआ है। तहक़ीक़ी है, ज़ुबान शनासी क्या है, तहक़ीक़ी मज़ामीन है, जिसमें 9 मज़ामीन हैं। ज़ाहिर है कि काजी साहब का खरे और सख्त अंदाज़ तहक़ीक़ से सभी अहले इल्म वाकिफ़ हैं। उन्होंने इसमें दीवान क़ाइम, मुरत्तबा खुर्शीदुल इस्लाम, कुल्लियात जाफ़र अली हसरत, मुरत्तबा नूरुल हसन, दीवान नाजी, मुरत्तबा फजलुल हक की बहुत सी गलतियों को सही किया। उसके अलावा लसानियात के ज़ेर उन्वान फ़ारसी अल्फाज की सेहत पर तहक़ीक़ की। एक मज़मून फ़रहंग आसिफ़िया पर है, जिसमें सैयद अहमद दहलवी की शख्सियत के अलावा आसिफ़िया पर तहक़ीक़ी नज़र डालते हुए उसकी गलतियों को ज़ाहिर किया। तो याद रखिएगा कि फ़रहंग आसिफ़िया जो किताब लोगा, तो उस पर मज़मून किसने लिखा है, मौलवी काजी अब्दुल वदूद ने, काजी अब्दुल वदूद ने। अब यहाँ से देख लीजिए, आप में से कोई पढ़िए, यहाँ से शुरू कीजिए। दिलचस्पी थी काजी साहब को गालिब से खास दिलचस्पी थी। गालिब पर उनकी 4 किताबें, कुछ गालिब के बारे में 2 जिल्दें, जहान गालिब, गालिब बहैसियत मुहक़्क़िक़ और माअसर गालिब अहमियत के हामिल है। इन किताबों में गालिब से मुतल्लिक़ काजी साहब के तहक़ीक़ी मज़ामीन शामिल हैं। गोया उन्हें मज़ामीन का मजमुआ भी कहा जा सकता है, लेकिन कैफ़ियत के लिहाज से उनमें यकसानियत ये है कि सभी मज़ामीन तहक़ीक़ के आला नमूने हैं। काजी साहब ने मीर से दिलचस्पी के बुनियाद पर उनकी शायरी व सवानेह से मुतल्लिक़ मज़ामीन क़लमबंद किए। इसके अलावा उन्होंने मौलवी अब्दुल हक बहैसियत मुहक़्क़िक़, कलाम शाद और कुछ शाद अज़ीमाबादी के बारे में मसहफ़ी और उनके मुआसिरीन दर्द व सौदा मुसहफ़ी और उनके मुआसिरीन दर्द व सौदा आवारागर्द अशार के उन्वान से अहम तहक़ीक़ी निगारिशात पेश की। काजी साहब ने इब्न अमीनुल्लाह तूफ़ान का तालिफ़ करदा तज़किरा शोरा की तरतीब व तदवीन का फ़रीज़ा अंजाम दिया। काजी साहब के मुतफ़र्रिक़ मज़ामीन को यकजा करके तहक़ीक़ात वदूद के नाम से शाये किया जा चुका है। उर्दू में अदबी तहक़ीक़ उनके 5 बेहद अहम मज़ामीन का मजमुआ है। उसूल तहक़ीक़, अदब और तहक़ीक़, सेहत मतन, रहबर तहक़ीक़ के उन्वान से ये चारों मज़ामीन आपस में नज़री तहक़ीक़ के बुनियाद पर रब्त रखते हैं। 5वां मज़मून नूरुल हसन हाशमी और अबुलैथ सिद्दीक़ी की तहक़ीक़ी मक़ालों, लखनऊ का दबिस्तान शायरी और दिल्ली का दबिस्तान शायरी पर तहक़ीक़ी व तनक़ीदी कहाँ चला गया, तहक़ीक़ी और सर ऊपर कीजिए, नहीं उतना ही पे पढ़ना है। ओके ओके मतलब नहीं था, ओके क्या होता है, अंग्रेजी स्कूल है। तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़े अगर पर यहाँ खत्म हो मुश्तमिल। जाता तो आपको जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते, इतनी इस्तेदाद करनी है ना। अगर यहाँ कट भी जाए तो क्या हो सकता है, मैं जानबूझ कर नीचे कर दिया था। लखनऊ का दबिस्तान शायरी और दिल्ली का दबिस्तान शायरी पर तहक़ीक़ी व तनक़ीदी जायज़े पर मुश्तमिल है। आइए ये पर अगर आप बहुत अहम है, यहाँ देखिए, अगर सवाल कभी आ जाएगा गालिब पर किसने 4 किताबें लिखी हैं, तो काजी अब्दुल वदूद ने कुछ गालिब के बारे में, जहान गालिब, गालिब हैसियत मुहक़्क़िक़, मासिर गालिब का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए, कोई भी आप में से देखे मासिर गालिब, गालिब के जो हम मासर हैं, गलत है दोस्त, वाह 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 वाह, जल्दी के ज़माने के जो लोग हैं उनके बारे में।
असर तो उनके जमाने के लोग ही होंगे ना जो अच्छा, चश्मा है आप लोगों के पास? कौन कौन चश्मा पहनता है आप में से? असर कैसे लिखते हैं कमेंट कीजिए। अच्छा, चश्मा पहनती है तभी हाल है, कमेंट कीजिए तो। असर असर कैसे लिखते हैं सब लोग, सब लोग लिखिए असर, सब लोग लिखिए, किसी ने असर लिखिए, असर कैसे लिखते हैं लिखिए। फर एक आदमी लिखा है सिर्फ, सब लोग लिखिए। 2 लोगों ने लिखा, बस इतने लोगों में 2 ही लोग, 3 लोग, 3 शख्स ने लिखा है। तो उसी तरह लिखा है क्या ये? अच्छा, असर उसी तरह लिखते हैं। चलिए आप बताओ। सानिया का तो दूध भी सही है, दही भी सही है, मही भी सही है ना। पहले आइन से लिखी, अब फिर अलिफ से कर दी है, ये भी गलत कर दी। अपने असर तो सही लिखती। अब बताइए बताने वाले लोग, क्या असर उसी माने में है? वही वही मानता है, वही तलफ़ुज़ है। मासिर गालिब, तब बताइए क्या माना होगा? अब तुम बना फलसफा झाड़ने लगी है ना। एजाज जहीन, फ़र्क है, मैं पूछ रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, फ़र्क समझाने लगी। मासिर, मासरतुन जमा मासिर, इल्मी काम, इल्मी मुहिम्मात, बड़े मैं बड़े। वो जो असर होता है मैं उसके बारे में लिखी थी, सेकेंड वाला जो लिखी थी आप असर। कौन सी बात करेंगे गलत बताई हैं, और सुनिए बता रहा हूँ तो सुनिएगा, ज़्यादा फ़ायदा करेगा। हमने आपसे क्या पूछा था? अब तो आपने पहले जब बोलने का मौका, हाँ तो वही माना तो होगा, आपने सोचा ही नहीं कि मैं पूछ क्यों रहा हूँ। और ऊपर से आपने दोनों लिख दिया, आइन से भी लिख दिया, उस पर अलिफ से भी लिख दिया, सा से। वो असर लिखा ना, उसका माना निशानी होता है, या मासिर है, वही 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 उसी तरह तो पूछा हूँ कि इसलिए तो लिखवाया हूँ कि इसका तलफ़ुज़ क्या, इमला क्या लिखिए आप लोग। मासिर मतलब, अब बताइए, मासरतुन जमा मासिर का मतलब होता है बुलंद पाया काम, इल्मी मुहिम्मात, जो बड़े बड़े कारनामा अंजाम देते हैं उनके लिए मासिर इस्तेमाल होता है। बड़े बहादुर लोग के लिए, जो अदबी मैदान में जो बड़े काम करते हैं, अच्छे काम, समझ गए, अजीम कारनामे, शानदार आसार, अच्छे आमाल, अरबी में बहुत इस्तेमाल होता है। मासिर इल्मिया, उनके इल्मी कारनामे, ये मतलब होता है। आप लोग देखे हो कि कुछ नहीं, शुरू हो गए दे दनादन, एक ने किया सब पीछे लग गए। चलिए समझ में आया? ये मासरतुन जमा मासिर, इल्मी और बड़े काम के लिए आते हैं। एक ही ज़माने के लोग के, अरे पगली, आइन से न होता है, असरुन मासिर, ये उस तरह होता है, ये इस तरह होता है, मीम ये होता है मासिर। समझ में आया? असर जब लिखवाया तो इतना समझना चाहिए ना कि देखो यहाँ आइन है, ये असल है, ये रा इसका असल हर्फ है, और रा असर, आइन स्वाद रा, इसका मतलब होता है हम ज़माना लोग, हम उम्र लोग, अहद के लोग। पगली का मतलब ये होता है जो बात समझ में नहीं आए। जैसे आप लोग पागलपन किए थे, देखे नहीं, शुरू हो गए, हम ये समझे। क्यों समझे? जब लिखा हुआ है यहाँ के सामने तो। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, गैर ज़रूरी बात पर नहीं। आगे आ जाइए। एक सवाल पूछे सब, फिर ना लग गए एकदम। मौलवी अब्दुल हक बहैसियत मुहक्किक कलाम शाद, याद रखिएगा, कलाम शाद पर और किसी तनकीद निगार ने भी काम किया है। किसने बताइए? पढ़ाया हूँ, कलीमुद्दीन अहमद, काम किया उन्होंने, ठीक है। कुछ शाद अजीम आबादी के बारे में, मुसाफ़ी और उनके मुआसिरीन, आ गया ना, ये है मुआसिरीन, मुसाफ़ी और मुआसिरीन यानी मुसाफ़ी के ज़माने के लोग, दर्दो सौदा, आवारा गर्द अशार, याद रखिएगा ये किताबें। ऐसा क्यों हो रहा है? कादी साहब के मुतफर्रिक़ मज़ामीन को यकजा करके तहक़ीक़ात वदूद के नाम से शाये किया गया है, ठीक है।
اردو میں ادبی تحقیق، ادبی تحقیق کسی کتاب بتائیے، صرف ادبی تحقیق کس کی کتاب ہے؟ ادبی تحقیق کس کی کتاب بتائیے، بولیے جلدی سے، صرف ادبی تحقیق کسی کتاب ہے؟ صرف ادبی تحقیق کسی کتاب بتائیے فٹ سے، جمیل جالبی، محمد حسن، کس کی ہے؟ اچھا مبارک ہوں، میرے گاؤں کا ایک لڑکا جیتا ہے دوڑنے میں۔ ادبی تحقیق محمد حسن یا جمیل جالبی؟ جمیل جالبی کی۔ جمیل جالبی ہیں؟ اور ادبی تنقید؟ محمد حسن۔ تو ہنس کیوں رہی ہو؟ چلو، اور قاضی عبدالودود کی کتاب ہے اردو میں ادبی تحقیق کے بارے میں، اس میں بھی اچھے اچھے مضامین ہیں۔ چلیے، اس کو میں نے پڑھا تھا کل ہی، آپ لوگوں نے پوچھا تھا دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی پر کتاب، دونوں کتابیں آ گئی، اس کو یاد رکھیے گا۔ اب بچ گئے ہمارے پاس امتیاز علی عرشی، تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، نپٹا دیتے ہیں آج، ہے نا۔ قاضی عبدالودود، اچھا گیان چند جین کا قول ہے، گیان چند جین نے ان کے انداز تحریر پر، قاضی صاحب کے، لکھتے ہیں قاضی عبدالودود کے یہاں ناخواندی اسلوب کے معراج ہے، وہ اس انداز میں لکھنے کے ماہر ہیں کہ قاری انہیں سمجھ نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ ناخواندنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناخواندنی کا مطلب پڑھا، ہے بنا پڑھا لکھا آدمی۔ لکھا آدمی، چلو چل جائے گا۔ بہرحال اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی تحریریں تحقیق کے اعلیٰ معیار پر کھری اترتی ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں، غیر جذباتی انداز، تجزیاتی رویہ، استدلالی مباحث اور منطقی نتیجہ قاضی صاحب کی تحقیقات کی خوبیاں ہیں، وہ بلا شبہ ایک مثالی محقق ہیں۔ چلیے، اب ہم لوگ آ جائیں گے امتیاز علی عرشی پر۔ امتیاز علی عرشی 1905 اور 1981، سب لوگ کمنٹ کیجئے ایک مرتبہ فٹ سے، 1905 1981 اردو تحقیق کے میر کارواں میں ہوتا ہے، شمار میر کارواں میں ہوتا ہے۔ ان کی ذات اور تحقیق لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہے۔ جات پات ہوتا ہے کہ ذات پات ہوتا ہے یار، اس پر مطلب سر سے ہماری بحث ہوئی تھی، اس کا جات پات لکھتے ہیں جیم سے کہ ذات پات لکھتے ہیں؟ ذات پات یا جات پات؟ ذات کی قسم ہوتی ہے، ذات، ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ مسئلہ تھا ایک مرتبہ ذات پات پر، پھر پوچھوں گا سر سے، ٹھیک ہے۔ ارے ان کی تقریباً 2.5 درجن کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ عرشی صاحب بھی مالک رام کی طرح ماہر غالبیات کی حیثیت سے تحقیق و تنقید میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، جسے نسخہ عرشی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ غالب کا معتبر ترین دیوان ہے۔ ان کا شمار ایسے محققوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اردو میں تحقیق و تدوین کے معیار کو معتبر و بلند کیا۔ ان کے مقدمے، دیباچے اور حاشیے ادبی تحقیق کے بیش قیمتی سرمایہ ہیں، غالب ان کا اڑنا بچھونا تھے۔ اب آجیے کام کی طرف۔ مکاتب غالب 1937، دیوان غالب 1958، فرہنگ غالب 1947 ان کی تحقیقی تصانیف ہیں، جن میں تحقیق و تدوین کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ دیوان غالب نسخہ عرشی کو غالب کے کلام کا معتبر ترین نسخہ مانا جاتا ہے۔ اس میں غالب کے اردو کلام کو تاریخی ترتیب دے کر 3 حصوں یعنی عناوین غالب، گنجینہ معنی، نمائے سروش اور یادگار غالب، کیا ہے؟ گنجینہ معنی، نمائے سروش اور یادگار غالب کے تحت شائع کیا گیا ہے۔ نسخہ عرشی 1958، یاد رکھیے گا 3 حصوں پر ہے، اس کو نشان لگا دوں تاکہ بعد میں کوئی ریکارڈنگ دیکھا ہوگا تو اپنے دیکھتا رہے گا۔
अरशी ने मकातिब गालिब 1937 को भी मुदव्वन किया, मुदव्वन काम तदवीन किया भी लिख सकते थे यहाँ। उनके मुरत्तब करदा मजमूए में गालिब और यूसुफ़ अली ख़ान नाजिम नवाब रामपुर के खुतूत शामिल हैं। मकातिब गालिब में गालिब और यूसुफ़ अली ख़ान नाजिम रामपुर। अदबी तहक़ीक़ में कहानी रानी केतकी और कुंवर उदय भान की भी उनका अहम तहक़ीक़ी कारनामा है, यानी इस पर भी उन्होंने काम किया है, जिसमें उन्होंने मौलवी अब्दुल हक के मुदव्वना नुस्खे की तस्हीह की है। अरशी साहब के बहुत से तहक़ीक़ी कामों का बराह रास्त ताल्लुक़ उर्दू अदब से नहीं है। खैर आइए हमको देख लेते हैं। अरशी ने गालिब के खतूत के मजमूओं यानी उदय हिंदी और उर्दू मुअल्ला के अलावा इंतखाब गालिब, दस्तंबू, काते बुरहान, पंज आहंग और तैग तेज़ की तरतीब व तदवीन का काम बड़ी अर्क़रेज़ी और दिक्कत नज़र से किया है। सिहत मतन के लिहाज से दीवान गालिब के साथ साथ ये किताबें भी मिसाली काम हैं। अरशी के दीगर तहक़ीक़ी तदवीनी कामों में दस्तूरुल फ़साहत ये पूछा गया है, सैयद अहमद अली यकता की है। उन्होंने शाह आलम सानी के फ़ारसी उर्दू कलाम को नादिरात शाही भी पूछी गई है किताब के उन्वान से अपने मालूमाती दिबाचे के साथ शाये किया। शाह आलम सानी नादिरात शाही शाह आलम सानी की किताब है। इंशाउल्लाह खान इंशा के सिल्क गौहर को मुरत्तब करने के अलावा मुहावरात बेगमात की तरतीब व तदवीन में उन्होंने खान आरजू की लुगत, नवादिर लुगात और रंगीन के दीवान रेख्ती से भी मदद ली है। ये सब काम है, याद रखना होगा यहाँ से, ठीक है। इधर मालिक राम है, नज़ीर अहमद है, मसूद हुसैन खान है। कौन छूट गए? ज्ञानचंद जैन। एक और कौन छूट गए? रशीद हसन खान। इन एक दोनों छोड़ देते हैं अभी, नहीं तो इतनी ज़्यादा किताबें आप याद नहीं कर पाएंगे, वरना पढ़ाने का चाहूँ तो अभी पढ़ा दूँ, 10-20 मिनट लगेगा। अब कुछ ज़ुबानी पूछ लें, ज़ुबानी कुछ पूछ लें, दिक्कत तो नहीं है क्या? अच्छा चलिए ज़ुबानी पूछ लेते हैं। ये तो क्लास बंद कर देते हैं पहले।